You told me to just extract the bill of material. So Yeah, very good. Yeah. based on the diagram we Yeah. designed, I tried to extract Mhm. uh, different services bill of material. Mhm. But I still have a doubt on this. So Yeah, yeah. let me share a screen and show Just share you. the screen. Yep. Okay. So this we will discuss later. Let me open. Uh, okay. This is our diagram. Actually, I don't have clear understanding on the project actually. Okay. Yeah, because project, okay, anyway. So we'll discuss on this particular point. So we designed this one last time, right? Yeah, this project is to to Uh, it's about, about to design the GDPR network on cloud. yes, yes, I can understand this. So that's why we are trying to connect, we are trying to route all the external traffic through a private network, And through head private, office, only through head yes, office, only through head office. right? So that Yeah. in a head office, everything will get filtered and Mm, correct now. And people should yes. not, yes. So this was the agenda when we are actually deciding this policy. Okay. So this is a firewall, right? This is a firewall, yes. Okay. So firewall. Okay. Then we are uh, doing a VNet peering to Yes. this and this. Yes. These are the Yes. independent VNet peering. Okay. So based on this particular concept, I Mhm. designed one diagram. So let me show you mine one, Mhm. and let me explain whether I'm right or wrong. Because I'm trying to experiment this one. Yeah. So what I have done, okay, hopefully this is the one. Yes, this is the one. Okay, so what I have done, we have a Azure uh, network, right? Yeah, you So have to first drag and drop each component, including virtual network, then VPN, okay, yes, then yes, Azure firewall, yeah, then DDoS. yeah. So what I have done over here, in Azure network, we applied a DDoS, right? Right, exactly. Okay. Then within a Azure network, we have created a 3 VNet virtual network Yeah, as per our diagram. yeah, yeah. So the first virtual network we have is for the head office. Hmm. So in head office, I changed slightly. So in head office, first virtual network, we have two subnet, right? Subnet one, subnet two, and third subnet is for Bastion 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 subnet. host. Yes, yes. Okay, Bastion subnet. Yeah. And then we have a virtual gateway. So virtual gateway and Bastion has to be a part of partially a part of VNet. VNet, exactly. Hmm. Yeah. So over here I have made slight change. This is our on-premise office. Yeah, yeah. Then we have created an on-premises gateway, Hmm. and then we have a VNet gateway, virtual network gateway. Yeah, yeah, yeah. So we are establishing a site-to-site VPN connection from Hmm. virtual gateway to on-premise gateway. Is this Yeah, correct? yeah. It is correct. Okay. Okay. Now we have an external user who is using from remote places, using their laptop or mobile phone, whatever. Yeah. So I for just sent one document. Can you open that one? uh, yep, one sec. Okay, let me.
Yep. So I give you in a word format, okay? Yes, thank you. So very first thing, you have to change that. You have to now create a proposal, okay? So Okay. first you change build test report Java app to Azure GDPR secure network. So I have to write. Yeah, just delete that word. Just Remove everything. no, just remove this. Only leave build. Just remove test also. Okay. Only Build build GDPR GDPR secure secure. VNet or virtual network. Okay. VNet. ठीक है? And Yes. there below you just say that. Sir, you can speak Hindi also, right? हाँ, बात कर सकते हैं. आपको आता है क्या? हाँ, अच्छी तरह से आता है सर. क्या बात है? Basically I am from Bihar. अरे मालिक, तो फिर तो हिंदी में बात करते हैं ना, फिर काहे का अंग्रेजी बोले जा रहे हैं? Oh my God. बताइए नहीं था. Okay. आप बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मैं मुजफ्फरपुर से हूँ. अरे मुजफ्फरपुर हमारा वो हुआ, ससुराल हुआ. अच्छा. Okay, so आप कहाँ से हैं सर? मतलब बेसिकली आरा से. अच्छा, आप आरा से हैं. ससुराल मुजफ्फरपुर. Okay, and settled in Bangalore. हाँ, सेटल इन बैंगलोर. Okay, cool. यहाँ का वेदर उधर अच्छा लगा मुझे. Yeah, and lot of opportunity अगर IT में है तो yeah. हम लोग एक्चुअली my dad was in army, so basically I am from Bihar. उसके बाद उनका पोस्टिंग हुआ पुणे में. अच्छा, okay. हायर एजुकेशन सब पुणे से किया. Then I got married in Pune also, settled in Pune, working in Singapore. I worked in Mumbai and Pune, and then came to Singapore. सिंगापुर कितना साल हो गया आपका? Almost 10 years. तो अब तो आपका वो हो गया होगा ना, जो 10 साल पे मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, कोई जरूरी नहीं है 10 साल पे PR मिलता है सर. अरे आपने ट्राई ही नहीं किया होगा, है ना? हाँ, 2-3 बार ट्राई किया है. We are still going to try again. We are in the process to apply. Yeah. So देखिए सर, अगर इस बार मिल गया तो अच्छा होगा. नहीं, हो जाएगा. क्योंकि इंडिया, सिंगापुर स्टिल फ्रेंडली कंट्री है ना? हाँ. करेक्ट ना? Yeah. गुड. Yes, sir. अब इसको डिलीट कीजिए. पाइपलाइन प्रोजेक्ट फॉर यूजिंग जेनकिंस गिट. यहाँ लिखिए. Yes, sir. यूज यहाँ पे यूज VPN. पहले लिखिए VNet प्लस DDoS प्लस Bastion TION प्लस VPN प्लस peering प्लस फायरवॉल. ओके सर. है ना? तो ये पूरा जो नेटवर्क बनेगा उसमें ये कंपोनेंट सारे जाने वाले हैं, राइट? These are the main component. हाँ, अब इसके जगह डेवऑप्स प्रोजेक्ट प्रपोजल की जगह लिखिए Azure नेटवर्क, Azure सिक्योर नेटवर्क प्रपोजल. थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए वहां से खींच के. यस, है ना? और यहाँ कोर्सेक हटा दीजिए इसको. कोर्सेक इसकी जगह लिख दीजिए टेकप्लेस कंसल्टिंग. हाँ, ये सिंगापुर में ऐसे ही लिखते हैं सर, PTLTD. हाँ, यस सर. सिंगापुर में अगर कंपनी रजिस्टर्ड कराना होना तो उसका भी प्रोसेस जरा पता कीजिए तो क्या है? मुझे मालूम है सर, आप बताइए कब रजिस्टर करना है. अच्छा, हाँ. तो फिर बैठते हैं ना
हाँ, मैंने एक बार रजिस्टर करा था, मैं उसको हाँ। 2 साल चलाया, उसके बाद मैंने बेच दिया उसको, 24,000 में बेच दिया। उसका क्या कॉस्ट है अभी स्टार्टिंग, अगर हम उसको अ, जैसे इंडिया में मैं बताता हूँ, इंडिया में स्टार्टिंग होता है प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है। ये हाँ, फिर उसके बाद होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC। हाँ। एक मिनट। अच्छा, ऐसे भी यहाँ पे कुछ करता है। आप बाकी मॉडिफिकेशन कीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए पंकज जी, ओके सर। है ना। यस सर। हाँ, अब हाँ, यस। ठीक है। टेक प्लेस डेवऑप्स, यहाँ पे डेवऑप्स की जगह हो जाएगा टेक प्लेस नेटवर्क आर्किटेक्ट और टेक प्लेस सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, 2 होंगे ये अलग-अलग। ना, नीचे नीचे है ना डेवऑप्स, उसको हटा के कर दीजिए टेक प्लेस सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। ठीक है, यप। नीचे आइए। अब इसका पहले बैकग्राउंड बनाते हैं हम लोग, यस सर। ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। नीचे आइए। हुँ। तो पहला वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। पहला वाला क्या है बैकग्राउंड में, TPCS is the best software development company providing premier customer software development। हाँ, अब यहाँ Yeah, to लिखिए। the clients from different sector. Yeah. Yes, yes, such। Now TPCS wants to Mm-hmm. acquire customer in European region। As per the Europe GDPR
GDPR compliance, TPCS has to implement secure network, secure virtual network on Azure cloud. This as per the GDPR requirement, all the data should इसको all the data नहीं करते हैं, इसको करते हैं as per the GDPR requirement, all the connections should filter at European office which is in Germany. Europe office, head office which is in Germany, at Germany, correct. Germany. ये बाकी सब हटा दीजिए. Yes, sir. Okay. In this implementation, the TPCS has limited experience in setting up secure network on Azure cloud. TPCS engage with TechPledge Consulting और नीचे से वाला चेक दीजिए, नीचे वाला है ना, नीचे देखिए ना लिखा हुआ है engage with CoreSec Consulting. Yes, के बाद engage with CoreSec Consulting के बाद for both technical guidance and business setup. Setting up secure network cloud for Europe client. ये नीचे वाला वर्ड हटा दीजिए. तो ये हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये हो गया बैकग्राउंड, राइट. अब ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों करना चाह रहा है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं leverage Azure capability to design and implement secure network with ease. हाँ ठीक है, स्पीड ऑफ द डिलीवरी ऑफ टू द एंड कस्टमर, ये सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं. एंड ऑफ द डे यही कर रहे हैं ना, मतलब हमें
ऑब्जेक्टिव तो यही है. नीचे ही This we have to change. चेंज दिया रोल. हाँ, ये कर दीजिए. द न्यू सेटअप should not impact the existing application intercommunication, because उनके एप्लीकेशन आपस में कनेक्टेड है, राइट. एप्लीकेशन intercommunication. Existing applications. I missed the voice. Internal communication. बिजनेस फोकस वही रहेगा कि आपको करंट बिजनेस इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक समझना है ना, प्लस उनका बिजनेस एंड टेक्निकल सॉल्यूशन समझना है. Yes. एज इज डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड Constraints. समझना है, फिर गेट डिटरमिनेट, राइट. अब उनके सामने दो ऑप्शन है आपके पास नीचे. So generally ऑब्जेक्टिव में 2-3 ऑब्जेक्टिव लिखते हैं. हाँ, 2-3 ऑब्जेक्टिव. जैसे किसी का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट सेविंग. Yes. नीचे ही. Okay. अब कस्टमर के सामने क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन ये है, यूज जर्मन क्लाउड. पहला ऑप्शन है उनके पास. स्टे ऑन प्रीमाइसेस की जगह हो जाएगा यूज जर्मन क्लाउड. ऊपर देखिए ना, ऊपर है ना लिखा हुआ आपका बेस लाइन ऑप्शन में. सर वॉइस क्रैक हो रहा है एक्चुअली. हाँ, ओके. फर्स्ट स्टे ऑन प्रीमाइस डेवऑप्स. ये हटा दीजिए. एक मिनट रुकिए, एक मिनट. एक्चुअली आपका वॉइस लैग हो रहा है, सो आई एम नॉट एबल टू लिसन प्रॉपर्ली. अच्छा, देखता हूँ क्या है. कुछ लैगिंग तो आ रहा है ना. यस. यूज Azure जर्मन क्लाउड. आपको पता है ये क्लाउड एक अलग है वहाँ. Azure ओके. Azure जर्मन क्लाउड. This cloud is by default comply all the rules of Germany, but अगर आप ये क्लाउड लेते हैं ना जर्मनी का Azure क्लाउड, तो इसमें सारा चीज पहले से सेट है. बट इसके साथ चैलेंज क्या है कि आप ये केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करता है. वहाँ पे ऑप्शंस था. when I was creating a bill of material, then German there are different options. हाँ, करेक्ट. आपको कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा, राइट. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, दिस क्लाउड इज स्पेशली meant for government sector. Yep. Is
more costly than open cloud. Yeah. Second, So open cloud means a public cloud, is it? जो अभी आप यूज कर रहे हैं ना वो ओपन एज्योर क्लाउड, उसमें Yeah. कोई भी साइन अप Okay. कर सकता है, बट Yeah. जर्मन में सिर्फ जर्मनी के लोग ही साइन अप कर सकते हैं। तो एजोर जर्मन क्लाउड जो है वो अलग उसमें क्लाउड सिर्फ ही है। जर्मन हो, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एजोर, इज That is a इट? possibility. उन्होंने अलग डेटा सेंटर रख देता है ओह, बिकॉज ऑफ ओके। स्ट्रिक्ट प्राइवेसी पॉलिसी, no other country or open cloud services can interact with German cloud. सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि क्योंकि उनका वो बोलते हैं कि भैया हम इस जर्मन क्लाउड में जो भी होगा दूसरे क्लाउड से बात ही नहीं कर सकता, प्लस वो किसी और कंट्री से बात नहीं कर सकता, ये तो मल्टी कंट्री कंपनी है ना, तो फिर वो तो गड़बड़, उनकी एप्लीकेशन सारे अलग अलग कंट्री में है, तो फिर कैसे सिंक होगा, आपस में सिंक ही नहीं होगा फिर। यस, but the main purpose is security, to follow the GDPR guidelines. Yeah. So keeping that in mind, that point as well as the last point you mentioned, we have to advise them Azure Open Cloud. या तो इसमें सबसे बड़ा अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको मल्टी जियोग्राफी डिप्लॉयमेंट मिल जाता है ना, जियोग्राफी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। यस। दूसरा क्या है, सिक्योर नेटवर्क कैन इजीली इम्प्लीमेंट। या आपको पहले से बनाया हुआ टेम्पलेट नहीं मिलेगा, बट आप बना सकते हैं बड़ी आराम से। यस सर। तीसरा क्या है आपका? तीसरा costly means it will be a cost effective. Yeah, interact with. Sir, you are writing somewhere else. It's not writing here. It can integrate with other Azure data center services. Yeah. Lesser cost than German cloud. Yeah. है ना, और इजी कर दे। तो अब आप कस्टमर को दोनों ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया अगर आपको बड़ी हार्ड सिक्योरिटी चाहिए, हाँ, तो जर्मन क्लाउड में चले जाओ, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑलरेडी वो डिफॉल्ट सब सेटिंग किया है। Yes. है ना, but that will be limited to your country. ओनली वन कंट्री। अगर आप चाहते हैं कि फ्रंट एंड हम अमेरिका रखें और बैक एंड हम यहाँ रखें तो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी जो होते हैं या पीएससी जो होते हैं, दे प्रीफर अ लोकल डेटा सेंटर। यस, राइट सर। यस। अब आप रिकमेंड क्या कर रहे हैं? यूज ओपन Azure cloud which is less in cost and can employ the law of different geography. Yes. Okay, so we have to give an option and then give our recommendation that this is Yes. our recommendation. Yes. There are options, but we will recommend to go ahead with the open cloud. Yes. अब यहाँ गूगल पे जाइए। Yes sir, बोलिए सर, लिखता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ गूगल पे लिखिए Azure जर्मन क्लाउड वर्सेस Azure ओपन क्लाउड।
What is that, sir? Azure German Cloud versus Azure Open Cloud. Hello. हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? Not able to hear you, sir. एक मिनट रुकिए. Sir, you can take a control. I'm not able to listen. हाँ, एक मिनट. Break हो रहा है sir. Voice break हो रहा है. एक मिनट रुकिए, मैं बिल्कुल वाईफाई के नजदीक चला गया था. अभी आवाज कैसा है? हेलो. Yes, sir. अभी आवाज कैसा है? हाँ, अभी एकदम क्लियर है. सर बाहर हल्ला हो रहा था ना. Maybe yes, sir. एक मिनट. अब आप गूगल पे लिखिए ना, एक बार शेयर कीजिए स्क्रीन द्वारा. Yes, sir. हाँ. Azure German Cloud versus Azure Open Cloud. इसमें जाइए, इमेज में जाइए, तो इमेज में एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ. आप सर्च कीजिए इधर, मैं भी देखता हूँ.
I can see some write up here, but I don't know हाँ, whether हमें राइट अप ही चाहिए. this is about a public Azure cloud, and then Azure German cloud is a sovereign cloud that consists of two Azure region that are located in Germany and make up of the Azure German cloud. This is for a customer within Germany that have a data sovereignty requirement as mandated by the German law. Correct. Yeah. So who need to ensure their data and workload stay in Germany, being a sovereign clouds, the Azure German cloud regions are not available for customers in other Azure cloud to choose when provisioning resources. ठीक है, ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं. Yes, sir. आपका शायद शेयरिंग बंद हो गया, वो शेयरिंग कीजिए. Okay. एक एक्सेल बनाइए, एक्सेल. Then copy this one. हाँ, पहले हम या अलग-अलग पॉइंट्स लिखने हैं. अलग-अलग पॉइंट लिख देते हैं. Azure जर्मनी, और एक लिख देते हैं, एक कॉलम बना देते हैं Azure ओपन क्लाउड. पहला पैरामीटर डाल दीजिए इसमें कॉस्ट. पहला पैरामीटर डालिए कॉस्ट. Okay. दूसरा पैरामीटर डालिए ऑल सर्विसेज. ठीक है. तीसरा डालिए इनबिल्ट सिक्योरिटी. नेक्स्ट डालिए मैनेजमेंट. नेक्स्ट डालिए डेटा मूवमेंट. सो कॉस्ट में Azure German cloud is costly, open cloud is cheaper. Yeah. Not all services like AI वहां में नहीं मिलता है. All services में लिखिए not all like AI, है ना. All services. And build security, yes. 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 No. We have to configure here. We have to build security here. We have to build. Yeah. यहाँ लिख दीजिए मैनुअल. Yeah. Management by trust. Management by Microsoft. By Microsoft. Data movement within Germany. यहाँ लिख दीजिए across globe. Sorry. Across globe. Yeah.
अब इसको थोड़ा फैंसी बना दीजिए, उसको जाके चेक कीजिए। So over here, ये बेनिफिट जो है ना, इसको हटा दीजिए। नीचे है ना बेनिफिट का एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है नीचे ही। हाँ, हाँ, उसके जगह ये वाला चिपकाइए। यस, हो गया, okay, है ना, नीचे yes, ही sir. है नीचे। अब यहाँ है आउटलाइन कॉस्ट, राइट। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर TCS Sorry. more Yeah. than half of their cost, for the TPCS more than Yeah. half of their के बाद सब कुछ हटा दीजिए। half of their cost may goes to implement technology and process to meet the compliance criteria of GDPR. Azure has all the inbuilt security feature which can configure without implementing any third party security devices or technology, any third party costly devices and security in this way. Customer can save up to 60% of the cost by implementing services available in Azure. अदरवाइज क्या होता ना कि उसको फायरवॉल खरीदना पड़ता, Yeah. प्लस सिस्को के बहुत महंगे महंगे डिवाइसेस आते हैं, वो खरीदना पड़ता नहीं। Yes, yes, yes. Of course, 60% is really reasonable. Means उससे ज्यादा ही होगा, saving हाँ, कम तो नहीं होगा. Yeah. नहीं होगा, हाँ करेक्ट, वही बोल रहा हूँ। तो Yes. ये जो हम इंप्लीमेंट करेंगे वो क्या है, वो इनबिल्ट सर्विसेज एज ए पैस सर्विसेज है ना। हमें Yeah. कोई डिवाइस बाहर से खरीदनी नहीं है, कुछ करना नहीं है। Yes, sir. Yeah. तो अब ये नीचे वाला सब हटा दीजिए जो है ना बाकी। Yeah. ये ग्राफ भी हाँ, ये हटा मतलब इट डिपेंड्स कितना फैंसी बनाना है, यस, मतलब आउटलाइन कॉस्ट में कैसे दिखाना है उसको। करेक्ट, राइट। हम सीधा सीधे बोल रहे हैं भैया 60% तो हट जाएगा। सेटिंग अप हटा दीजिए पूरा रेड वाला हटा दीजिए।
अब हमारा की डिलीवरेबल क्या है ना? अब मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि कैसे बनता है प्रपोजल, राइट? है ना? की डिलीवरेबल में हमारा पहला डिलीवरेबल क्या है? हाँ सर, आई गॉट, लिख दीजिए, क्रिएट फुल्ली सिक्योर्ड वर्चुअल नेटवर्क इन Azure क्लाउड। सो जो डिलीवरेबल्स जो होता है, दोज आर सर्विसेज, राइट? व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर जिसके टू अ ऊपर में कस्टमर, कस्टमर एग्री करेगा कि हाँ मुझे यही चाहिए वही था। होता है ना सर? हाँ हाँ, हाँ, ओके। उसके बाद लिखिए, वो कस्टमर अग्री करने के बाद जो सर्विसेज हम देते हैं, दोज हाँ, आर डिलीवरेबल, दोज आर वो कमिटमेंट फ्रॉम आवर साइड। यस। सेकंड डिलीवरेबल क्या हो गया? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनायल ऑफ डिफेंस अटैक। या अगेंस्ट डिनायल ऑफ डिफेंस अटैक, ये है ना सर? हाँ हाँ, यार, डीडॉस लिखो या पूरा लिख दीजिए, डिनायल ऑफ ऑफ डिफेंस डिफेंस, अटैक। गलत, ओके, करेक्ट। तीसरा, सिक्योर एक्सेस ऑफ सर्विसेज फ्रॉम Azure portal using Bastion। बास्टियन, या फिर लिखिए, सिक्योर एक्सेस ऑफ सर्विसेज फ्रॉम Azure, secure access of services of Azure from on premises using VPN। या लास्ट लिखिए, सिंगल कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन सिंगल लोकेशन, जो कि उसका मेन डिमांड था, है ना? या फ्रॉम वन सिंगल लोकेशन। यस, गुड। अब हटा दीजिए बाकी। अब हमें क्या क्या हमें रिसोर्स लगाने पड़ेंगे? तो हमें लगाने पड़ेंगे एक टेक्निकल, एक नेटवर्क आर्किटेक्ट, एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट, है ना? यस सर। सो सर, एक डाउट था, इसमें हम किसी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स टोटली रिलेटेड टू नेटवर्क। बट ओके, उस नेटवर्क में जो भी एप्लीकेशन चल रहा है, वो यस सर। कस्टमर का डिमांड है कि वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्रंट एंड और बैक एंड में कम्युनिकेशन बंद करा दे। हाँ, तो उसके लिए भी तो रिसोर्सेज लगेंगे ना, मतलब उसके लिए भी तो वी नहीं, हम नीड। अपना नेटवर्क बनाएंगे, उनका जो एप्लीकेशन टीम है वो यस सर, वेरीफाई करेगी। इसीलिए देखिए, हमारे तरफ से तो वो है, नेटवर्क और सिक्योरिटी के बंदे हैं, बट ओके, उनके तरफ से एप्लीकेशन और डेवलपमेंट के बंदे हैं। यस सर, तो नेटवर्क और सिक्योरिटी के बंदे कहाँ से हैं? टेक प्लेस से है। ओके, टीपीसीएस क्या दे रहा है? टीपीसीएस अपना एप्लीकेशन का बंदा दे रहा है और अपने हाँ। डेवलपमेंट का बंदा दे रहा है। So this project is partly outsourced to फॉर Tech नेटवर्क Place कॉन्फ़िगरेशन, यस, for network configuration, secure network configuration. राइट। The other part will be done by someone else. हाँ, Means हम those हम are, एप्लीकेशन, हाँ, they are also going to do some configuration on Azure, but वो अलग हो गया, मतलब वेब एप्लीकेशन, जो भी हाँ, उनसे एप्लीकेशन हमें, डेटाबेस है यस उसका अलग रिक्वायरमेंट है, that is done by someone else. यस, हाँ, या सो असल में आजकल जो, या सर, जो आजकल
जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स आते हैं ना, तो उसमें बहुत स्पेसिफिक आजकल हो गया है कि ओके, लुकिंग फॉर अ नेटवर्क आर्किटेक्ट, नेटवर्क यस क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवऑप्स यस आर्किटेक्ट, ऐसे करके क्यूबरनेटी आर्किटेक्ट. सो वी वी हैव टू बी स्पेशलाइज्ड आल्सो. Maybe हैव टू until last year, स्पेशलाइज yeah, until last year it was very broad cloud solution architect, but आजकल बहुत specific हो गया है. Yeah. करेक्ट है. अब Yes यहाँ पे sir. हमें क्या चाहिए, की रिसोर्स में क्या लगाएंगे, एक आप नेटवर्क इंजीनियर लगाएंगे Yes sir. और एक आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट लगाएंगे. Architect. Okay. राइट, Architect PM and this पीएम रहेगा ही इसके जगह, बस हो गया है ना. ये आपका रिसोर्स है. निशा yes जी, yes. हम अभी Consideration. हाँ, हम अभी नीचे वाला आईजीटी रखेंगे, ये उनका भी आईटी इन्वायरमेंट चल रहा है. Okay. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. निशा जी, ये बाकी अदर कंसिडरेशन है जिसमें हमें कोई खास चेंज नहीं करना है. राइट, ये स्टैंडर्ड लाइन है जो कि डाला हुआ है. Okay, these are the standard line, right? दीज आर द स्टैंडर्ड लाइन. यस. Okay. अब यहां से हमें चेंज करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, द प्रपोज्ड, Heading. ये हटा दीजिए, नंबर 2 पूरा हटा दीजिए. नंबर 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डेवऑप्स की बात नहीं कर रहे हैं. तो पूरा हटा पूरा दीजिए, पूरा. फीचर्स ही हटा देता हूँ ना हाँ, सर, पूरा हटा दीजिए. Yes. ये नंबर 2 डेवऑप्स का. का है, हमें डेवऑप्स तो करना नहीं है. अच्छा है आपके पास एक डेवऑप्स का भी टेम्पलेट आ गया है ना. Yes. ये these also. सब 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 जरूरत नहीं है. हर प्रपोजल अलग बनता है, आप देख रहे हैं. आपको This. याद है कि जब हमने वो बनाया था, Yes. वो बिल्कुल डिफरेंट बना था. डिलीट कर दीजिए इसको. ये थर्ड also और सेकेंड अप टू ये भी सेकेंड. सब डिलीट कीजिए ना. बस खाली प्रपोज रखिए, प्रपोज रखिए, प्रपोज रहेगा. यस. अब ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये प्रपोज्ड वाला भी हटेगा, नीचे वाला हटेगा. हाँ, ये हटा दीजिए. The blue one, the हाँ, content. द प्रपोज्ड डेवऑप्स सॉल्यूशन भी हटा दीजिए पूरा. Okay. ये नीचे वाला पैराग्राफ भी हटाइए. बस 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 ऊपर ऊपर ऊपर. हाँ, आप यहाँ पे लिखिए नीचे. अब वो जो आपका डायग्राम है ना, वो चिपकाइए यहाँ पे. वो जो डायग्राम बनाया ना हम लोगों ने, हाँ ओके. सो हाँ एक मिनट सर, ये इसको प्रपोज rename सिक्योर करता हूँ. नेटवर्क, Proposed. अज्योर सिक्योर नेटवर्क सॉल्यूशन. Okay, this. फाइल एक्सपोर्ट एज जेपीजी, एक्सपोर्ट कीजिए. हाँ, हाँ, अब इसको एमएस पेंट में खोल लीजिए, वो जो डायग्राम आपने अभी डाउनलोड किया ना. I think this is the one. Right sir. करेक्ट. So JPG में अगर एक्सपोर्ट किया तो सिर्फ डायग्राम एक्सपोर्ट हो जाता है, राइट? बस नॉट द बस एक्स्ट्रा थिंग्स. Because PDF में sometimes it takes the spaces. करेक्ट. Yeah. Okay. ठीक है, तो ये हो गया Yes, जी sir. आपका आर्किटेक्चर. नीचे ये. Right. अब आपका ये अप्रोच क्या है, तो आपका ये स्टैंडर्ड अप्रोच है कि आप पहले कस्टमर के Yeah. एनवायरनमेंट को समझते हैं वगैरह वगैरह. फिर आपका डिप्लॉयमेंट अप्रोच क्या है. अब ये आपका अगेन स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट अप्रोच है कि कस्टमर के एनवायरनमेंट को समझेंगे, फिर आप डिजाइन करेंगे. करेक्ट.
या नीचे आइए। सो इसका ये जो अप्रोच होता है सर, इट्स ऑलवेज स्टैंडर्ड और हाउ टू स्टैंडर्ड होता डिफाइन है, दिस मींस मतलब कभी आपका चेंज अप्रोच होता क्या है? है ये? जैसे फॉर एग्जांपल आप जब मेरे पास आए थे तो मैंने आपको अपना अप्रोच समझाया था कि हम कैसे पढ़ाते हैं लोगों को, तो हम ऐसे कराते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है, सबके लिए वही राइट फिट होता सर। है। करेक्ट। तो आप अपना कंपनी का एक्चुअली आप अपना प्रोजेक्ट का अप्रोच बताते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट का अप्रोच क्या है? पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, फिर कस्टमर का आर्किटेक्चर समझेंगे, राइट, या है ना? फिर आप डिप्लॉयमेंट कैसे करने जाते हैं, तो पहले आप ये सारा so डिजाइन वगैरह so बनाएंगे। this approach is not as per the approach given by Azure Microsoft. नो It नो, can be different, कंपनी टू it can differ vendor by vendor. वेंडर Yeah. वाइज। अब आप जैसे Okay. आईबीएम वगैरह जब जाते हैं प्रोजेक्ट करने, तो उनका तो असेसमेंट पीरियड ही 2 महीने का होता है, Yes, yes sir. मतलब। Yeah. और छोटे वेंडर जो है वो 2 महीने में डिप्लॉय अप्लॉय करके सब खत्म भी कर देते हैं, तो दोनों में अंतर है। Yes. Yeah, quality. क्वालिटी, राइट। तो वो मोटा पैसा उसी चीज का 1 करोड़ चार्ज करता है, छोटे वेंडर 10 लाख चार्ज करते हैं। या वो क्या छोटी छोटी चीजों को डॉक्यूमेंट करता है, कॉन्फ़िगर करता है, कंफर्म करता है, यस, so that's why they charge a lot, यस, but they takes time also ना, time और cost also high. तो हाई, अगर उतना इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स एनीबॉडी कैन गिव अ बेटर सॉल्यूशन. यस, अगर पैसे हैं और टाइम है तो सब कुछ होता है. सब राइट कुछ, सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीचे आई। यस यस सर. ये हटा दीजिए, जरूरत नहीं है हमें। या सर लगता है कि ये एक डेवऑप्स का भी कोर्स करना पड़ेगा सर. आई इम्प्रेस्ड. या नीचे वाला हटा दीजिए, ये लॉगिन स्क्रीन हटा दीजिए। यस. ये टेक्निकल तो नहीं है ना, मतलब ये नहीं टेक्निकल नहीं वाले का तो नहीं, ये नहीं, आर्किटेक्ट का ही है राइट सर? हाँ ये आर्किटेक्ट, ये सब निकाल दो. हाँ सब निकालेंगे। ये नहीं निकालेगा, ये टेबल नहीं, टेबल नहीं। अप टू दिस राइट. हाँ, ओके. गुड। अब यहाँ पे नीचे ही, या अब यहाँ पे आवर हाँ सर. प्रपोज्ड, आवर प्रपोज नेटवर्क आर्किटेक्चर फ्लो में वो एक्चुअल स्क्रीनशॉट आएगा जो हम जब हम अज्योर में पूरा नेटवर्क डिजाइन कर लेंगे। हाँ यस इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं, ठीक है। यस अब डिप्लॉयमेंट एंड बिल्ड प्लान में आइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे डिप्लॉयमेंट एंड बिल्ड प्लान में? अब यहाँ पे हाई लेवल स्टेप्स देते हैं हम। सबसे पहले क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क फॉर ऑल 3 लोकेशन। Define subnets as per plan। फिर क्या करेंगे? हाँ ये रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। और नीचे आ जाइए M4 में कॉन्फ़िगर Bastion नेटवर्क इन Azure। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए इम्प्लीमेंट साइट टू साइट VPN। टू साइट VPN is it? हाँ, साइट टू साइट, Is it? इट्स कॉल्ड Okay. साइट टू साइट। या मैंने साइट सुना नहीं. ओके सर. फिर लिखिए इम्प्लीमेंट पॉइंट टू साइट VPN।
High level steps, right, sir? हाई लेवल स्टेप्स। Okay. फिर लिखिए कॉन्फ़िगर अज्योर पॉलिसी टू कंप्लाई GDPR। फिर यहाँ लिखिए कॉन्फ़िगर अज्योर नेटवर्क सिक्योरिटी। फिर लीजिए टेस्ट द एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। फिर कर दीजिए हम हैंड ओवर द क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपके क्या हो गया, माइलस्टोन हो गया, है ना। Yeah. गुड। Yeah. अब हाँ, हाई लेवल प्रोजेक्ट अप्रोच एज इट इज रहेगा, क्योंकि जनरली हम लोग यही देते हैं मोस्ट ऑफ टाइम पे कि वीक 1 में ये ये तो करेंगे, चेंज हो सकता है। हाँ चेंज हो सकता है, यस सर। है ना, ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे स्टेप परफॉर्म करते जाएंगे वो सब, तो पहला प्लानिंग फेज में ज्यादा चीज नहीं होगा। देखिए बिल्ड एन इनिशियल आर्किटेक्चर प्लानिंग फेज में नहीं चाहिए। यस। हाँ, इनिशियल आर्किटेक्चर, बिल्ड इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन ब्लूप्रिंट, ये भी एज इट इज है, राइट। एनवायरनमेंट फॉर implementation of secure network। फिर उसके ये एज इट इज रहेगा, वैलिडेट द फाइनलाइज आर्किटेक्चर एज इट इज रहेगा, फाइनलाइज इम्प्लीमेंटेशन ब्लूप्रिंट कर दीजिए माइग्रेशन की जगह। फिर लिख दीजिए फाइनलाइज कनेक्शन ऑफ पोर्ट टू बी ओपन फॉर नेटवर्क। फाइनलाइज कनेक्शन पोर्ट्स नेटवर्क हो गया, ये हो गया। अब डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी प्रोसीड्यूर वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, ये तो ठीक था। ओके। फिर लास्ट में माइग्रेशन की जगह खाली हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। अब देख रहे हैं ना कि एक ही प्लान को हम लोग बस ट्विक करते हैं। या सो जनरली फॉर एक जो डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब एवरेज साइज ऑफ प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें कितने टाइम लगते हैं सर? अगर आपके पास जैसे ये बन गया, सपोज एक नेटवर्क आपने बना रखा है, एक डेवऑप्स का बना रखा है, एक आपका उसका बना रखा है, लेट्स से डेटाबेस का बना रखा है, तो उसमें सिर्फ मतलब मुश्किल से आधा घंटा लगता है। ओके। जैसे आज अभी आपको 1 घंटा से ऊपर लग गया, राइट, क्योंकि आप शुरू से बना रहे हैं। यस सर। बट अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को AWS में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बस इसी डॉक्यूमेंट को चेंज करेंगे। वीनेट की जगह सर्च मारेंगे, सब वीनेट चेंज हो जाएगा VPC में, खत्म। राइट सर। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो उसके बाद क्योंकि अब क्या होता है कि जब आप आर्किटेक्टिंग में बैठे हैं तो आपके पास में दिन भर में 10-15 टास्क आ जाते हैं। ओके। आप ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट मिल गया, वो तो बहुत बड़ी कंपनी में होता है जहाँ आराम वाली नौकरी नहीं होती है, IBM जैसे। प्रोजेक्ट मैनेजर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है और साला 8-8 महीने उसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं।
अगर आप नॉर्मल साइज की कंपनी में जाएंगे तो एक एक दिन में आपको 5-5 6-6 जगह कस्टमर से बात करनी है, उनका डिजाइन बनाना है, तो इतना टाइम नहीं बनता आपको, राइट? तो Yeah, आप क्या करते हैं कि पहला, दूसरा या फर्स्ट 10 जो टेम्पलेट बनता है उस पे पूरा टाइम लगता है, 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। yes sir. बट सर अगले ये जो बारे में तो सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। हाँ, ये जो 10 टेम्पलेट है सर, उसका एक बार नाम बता देंगे ना सर? नहीं, जैसे अभी एक बना रहे हैं ना आप, नेटवर्क आपके पास हो गया, राइट? हाँ सर। दूसरा मैंने एक डेवऑप्स का आपको नहीं दिया। यस सर। इस तरह से आपका टेम्पलेट बिल्ड होता चला जाएगा। हाँ हाँ, जैसे जैसे AWS का आपको फ्रेश डिप्लॉयमेंट का टेम्पलेट मिल गया कि फ्रेश डिप्लॉयमेंट करना है तो कैसे करना है। आ गया क्लियर? तो ये Yes. अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टेम्पलेट आपने बना दिया। अब क्या है, अब उसी को घुमाते रहते हैं बैठ के। Yeah, yeah. Over the period of time, एक साल के बाद, if I work as a architect for 1 year, एक साल के बाद तो फिर yeah, just keep on updating the knowledge, new बस technology जो आ रहा है। हाँ, Yeah. ठीक है। तो Yes. बाकी हम लोग अब ये हमारा बन गया। कल हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट प्लान, इसको पहले Yes. कंप्लीट करेंगे, फिर कल प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे और परसों से डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। और फिर Yes है ना? sir. चलिए सर, Yes. कल मिलते हैं फिर। Okay sir. Thank you. Thank you sir. Good night. हाँ?